basic introduction about Safalta.com. I'll just take like 5 to 10 minutes of your time, so that everybody over here is on the same page. So, starting off with what is Safalta.com? See, Safalta.com is basically a flagship brand of Amar Ujala, and Amar Ujala is one of the legacy media houses of the country. It was founded in 1948, so it has decades of experience in the media domain. And Safalta.com is relatively newer, and it's been in the education domain for the last 10 years or so, and it is based on some very clearly defined principles, right? The aim of Sapata.com has been to provide quality education by providing the best faculty members to students across the country, across tier 2 and tier 3, and at an affordable price while staying in the comfort of their homes, right? I would request people to not touch the screen because I think it's marking on the screen on the PPT. And the three pillars of success on which Sapalta.com is primarily based, as I just mentioned in the aim as well, is the quality education, accessibility for all, and economic viability. So Sapalta.com का basic motive यही रहा है that वो best quality education आपको provide कर सकें, irrespective आप किस city को belong करते हैं और एक अफोर्डेबल प्राइस पे, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना करियर इम्प्रूव कर सके और अपनी लाइफ भी इम्प्रूव कर सके, राइट? सो the courses that are being offered by Safalta.com, since you joined for UPSC, it's a part of engineering bucket. So engineering, medical, law, armed forces, चाहे वो एयर फोर्स हो या इंडियन आर्मी हो, और गवर्नमेंट एग्जाम्स, say for example SSC and CTET जो टीचिंग के लिए होता है, and so on and so forth, right? Now we have three renowned faculty members who are going to teach you the UPSC masterclass, right? And I would be welcoming them now. So we have Mr. Akash Srivastava, right? He has been a former faculty member at Vidya Mandir classes. It is as well as for Akash and Byju's, and he's done his a bachelor's in technology from IIT Dhanbad, right? And we have Mr. Avinash, he'll be teaching you maths. And then we have Mr. Avinash Sinha. Sir, Avinash sir will be teaching you physics, and he's completed his BTech from HBTU Kanpur, and MTech from BIT Mesra. BIT is Birla Institute of Technology Mesra, and he's taught in Akash and PACE. And then we have Mr. Atul. Atul sir will be teaching you chemistry, and he's completed his master's in science in chemistry, and he has been a coach in different BTech institutes, right? So welcoming all three of you on board, and I would request all of you to follow all the handles of Safalta Class, to subscribe to the YouTube channel of Safalta Class, and the Facebook handle of Safalta Online, and Instagram, and you can also download the app from the Google Play Store. So Ankit sir, I'll be transferring the screen control to you now. Yeah. Avinash sir, we can start the session now. सर प्लीज अविनाश सिन्हा सर को आप एक बार वो बना दीजिए, को होस्ट अविनाश सिन्हा नाम से उन्होंने लॉगिन किया हुआ, ये चैट फैकल्टी है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बेटा मेरे ख्याल से आप सभी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए हैं, ठीक है? आप लोगों का एग्जाम होने वाला है सितंबर के लिए, तो आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि जो पेपर आपको जुलाई 2 अगस्त को होने वाला था वो आपका थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है, ठीक है? तो आपको लगभग 1.5 मंथ्स का पूरा टाइम मिल रहा है कि ताकि आप लोग सभी चीजों को एक बार फिर से रिकॉल कर सकें
और अच्छा स्कोर कर सकें आप लोग यूपीएससी लेवल पे, ठीक है। माई सेल्फ अविनाश सिन्हा एम डिड माई एमटेक फ्रॉम बीआईटी मिश्रा एंड नाउ परसुइंग पीएचडी फ्रॉम आईटी दिल्ली, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल अगर बात करूं कि हाँ यूपीएससी आपको क्यों क्वालिफाई करना है, या अगर यूपीएससी के बारे में बात करें तो यूपीएससी आप लोग क्यों लेना चाहेंगे। देखिए पहला पॉइंट तो ये है कि यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि आपको इवन एनआईटीज को भी टक्कर देते हैं, ठीक है, उसके पैरेलल में है, ठीक। तो अगर मैं जेएसएस नोएडा की बात करूं, गलगोटिया की बात करूं, तो ये सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो कि कई सारे एनआईटीज को टक्कर देते हैं। इनका परसेंटेज जो आपका रहता है, अगर मैं जॉब, अगर आप तो सिंपल बात करते हैं कि आप लोग क्यों किसी भी इंजीनियरिंग क्यों करना चाहते हैं, मेन मोटो है कि इंजीनियरिंग करने का मेन मोटो है कि आप आफ्टर क्वालिफिकेशन आप लोग क्या कर सकें, जॉब ले सकें, ठीक है। तो ये सब जो कॉलेजेस हैं वो आपको अच्छे जॉब ऑफर भी करते हैं, ठीक है। अब सिंपल अगर हम लोग बात करें जो नेक्स्ट ईयर से, ये है कि नेक्स्ट ईयर से आपका क्या होगा, जो स्टेट लेवल पे जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो आपके आईआईटी से कोलैबोरेट होने वाले, ठीक है। ये आपका लास्ट चांस है कि यूपीएससी आपका अलग से एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको ये शायद मौका ना मिले कि आप लोग फिर इसकी प्रिपरेशन कर पाए नेक्स्ट ईयर से। और आपको ये पता है कि यूपीएससी का जो लेवल है इन कंपैरिजन टू आईआईटी ये थोड़ा डाउन लेवल है, ठीक है। तो ये आपके लिए गोल्डन टाइम है कि आप लोग 1.5 मंथ्स को अच्छे से यूटिलाइज करें और यूपीएससी में अच्छा से अच्छा स्कोर करें, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर से अगर ये आपका आईआईटी में कोलैबोरेट हो गया, ऑल ओवर इंडिया सिंगल पेपर होगा आपका, तो उसमें आपको स्कोर करना थोड़ा सी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर आपके इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके कारण क्या होगा, कंपटीशन टफ होगा, और कंपटीशन टफ होगा तो आप लोग जानते हैं कंपटीशन टफ होगा तो जो आपकी क्वालिफाइड मार्क्स होते हैं वो रैंकिंग भी हाई जाएगी, ठीक है। तो अगर हम लोग आज के लिए बात करें तो आज मैंने आपके लिए एक जनरल टॉपिक लिया है फिजिक्स का, वो है रिलेटिव मोशन, ठीक। कई लोग जानते हैं कि हाँ रिलेटिव मोशन मेरे को आता है, मैंने पढ़ा है VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, ठीक है। तो वहां पे जाके सब चीजें खत्म नहीं होती हैं, लेकिन अगर इसको डीपली समझा जाए तो रिलेटिव मोशन है क्या। ये रिलेटिव मोशन एक कॉन्सेप्ट है किसी भी न्यूमेरिकल को इजी वे में सॉल्व करने का, ठीक है। रिलेटिव मोशन एक कॉन्सेप्ट है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, ठीक। ये कोई मैथमेटिकल टूल्स नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपने स्यूडो फोर्स का भी कॉन्सेप्ट सुना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स क्या है, स्यूडो फोर्स भी आपका एक कॉन्सेप्ट है, इमेजिनरी फोर्स, काल्पनिक फोर्स, ठीक है, काल्पनिक बल अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो ये भी क्या है आपका एक वर्चुअल या सिंपल कहें इमेजिनरी, जो आपके सिर्फ माइंड में है, ऐसा कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आए फिजिक्स में, किसी भी न्यूमेरिकल को इजी वे से सॉल्व करने के लिए आपने ये कॉन्सेप्ट को लेकर आया है, ठीक। तो अगर हम लोग सिंपल से मैं वीडियो से इलस्ट्रेट करना चाहता हूं कि रिलेटिव मोशन आपका क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि अच्छा सर ने बताया, तो अब जाके मेरे को लग रहा है कि हाँ रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट मेरे को जाके कुछ क्लियर हुआ है। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद कई सारे क्वेश्चन मेरे बहुत ईजी हो गया, तो बहुत आसानी तरीके से कर सकता हूँ, ठीक। तो एक वीडियो है, मेरे ख्याल से आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। एक लड़का है जो मान लीजिए एक मूविंग बस में बैठा हुआ है, ठीक है, मूविंग बस में बैठा हुआ है, और ये देखिए अब बस आपकी मूव कर रही है, ठीक। तो मैंने कहा कि बस आपकी लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं सिंपल कह रहा हूं कि बस आपकी रोड पे मूव कर रही है। तो मैंने कहा कि ये आपकी बस जो रोड पे मूव कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। अब मैं इसको अलग अलग फ्रेम में देखूंगा। तो पहला टॉपिक जो हम लोगों ने आज का लिया है वो है रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो सिंपल सा एक एग्जांपल है रिलेटिव मोशन को समझने का। ये सिर्फ आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूं जो आप लोग डेली लाइफ में देखते हैं। दो कार हैं, मैंने कहा कि बी कार आपकी हाई स्पीड से मूव कर रही है और ए कार की स्पीड थोड़ी कम है। अगर इन दोनों के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बातें करें, इसने कहा कि इसने XA डिस्टेंस कवर किया, ए कार ने, ठीक है, और बी कार ने XB डिस्टेंस कवर किया इस स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक ने XA डिस्टेंस कवर किया है और बी ने XB डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन अगर मैं इन दोनों के रेस्पेक्ट में बात करूं, इन दोनों की डिस्टेंस तो यही होगी, ये वाली डिस्टेंस है इन दोनों की डिस्टेंस।
तो ये आपने लिखा है एक्स बी ए, इसका मतलब बी की एनालिसिस कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू ए। ए वाला अगर बी को देखेगा तो वो कहेगा कि ये मेरे से कुछ 10 मीटर के डिस्टेंस पे है। अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं, ए वाला तो आगे आ गया, ए वाला जब आगे आएगा तो वो कहेगा कि मेरे रेस्पेक्ट में बी पीछे है। सिंपल, आप लोग हाईवे पे जब कार ड्राइव करते हैं ये सब चीजें एनालिसिस करते हैं कि आपको ब्रेक अप्लाई करना नहीं करना है, ओवरटेक करना है नहीं करना है, तो आप लोग डेली लाइफ में रिलेटिव मोशन देख रहे हैं लेकिन फिजिक्स में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। वो हमें सीखना है कि फिजिक्स में अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ये सिर्फ रिलेटिव मोशन है कि ए के रेस्पेक्ट में बी क्या कर रहा है, बी के रेस्पेक्ट में ए क्या कर रहा है। मैंने कहा यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें, आपने कहा एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, दैट मीन्स ए के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन, ये तो इससे दूर जा रहा है ना, दूर जा रहा है मतलब पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको वीडियो दिखा रहा हूं ताकि अभी जो आगे वाला टॉपिक मैं स्टार्ट करूं उसको आप लोग समझने में आसानी हो, आप लोग इमेजिन कर पाए हाँ ये सब चीजें कैसे हो रही हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया, दो बसेस हैं, दोनों V1 V2 स्पीड से मूव कर रहे हैं। हाईवे के सामने से मान लीजिए एक और बस है जो इसकी तरफ मूव करते हुए आ रही है। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है और ये दोनों बसेस इसके पास आ रहे हैं। ठीक, अब V1 V2 ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये लेफ्ट साइड में मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड से खड़े होकर मैं देख रहा हूं, सिंपल अब ग्राउंड से ऑब्जर्व करें तो ये सब चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन अगर मैं इस वाले बस में बैठ जाऊं तो मेरे को लगेगा कि सामने वाला बहुत तेजी से आ रहा है। अगर मैं इस वाले बस में बैठूं और इसको देखूं तो ये तो मेरे रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पोजीशन पे, मेरे को लगेगा कि इसकी पोजीशन तो चेंज ही नहीं हो रही है मेरे रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये सिंपल आपका रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो आज का सेशन हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज का जो सेशन है वो है रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले अगर रिलेटिव मोशन की बात करें तो पहला टॉपिक आता है रेफरेंस फ्रेम, कि रेफरेंस फ्रेम होता क्या है। कई लोगों ने सुना है कि रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रेफरेंस फ्रेम। टेक्निकल वर्ड से बिल्कुल दूर हटिए, हम लोग टेक्निकल वर्ड पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करेंगे। मैं सिंपल कहूंगा रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर। रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या हुआ, वो इंसान जो चीजों को देख रहा है, वो इंसान जो चीजों को देख रहा है वो ऑब्जर्वर है। ठीक है, अब जहां पे ऑब्जर्वर है, जो भी ऑब्जर्वर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस फ्रेम। जो भी ऑब्जर्वर है वही क्या है, आपका रेफरेंस फ्रेम है। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम कुछ नहीं है, जरा से भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर। जहां पे भी ऑब्जर्वर होगा उसको हम लोग कहेंगे ये आपका रेफरेंस फ्रेम है। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं, जब भी आप लोगों को वीडियो में मैंने दिखाया था। मान लीजिए एक कार है, दिस इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड। ये कार आपकी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। एक और कार है, मैंने कहा एक और कार ले लीजिए, एक कार और है जो एक इसके पैरेलल ये भी 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है। ठीक, ये हाईवे पे कार है। ठीक है, ये हाईवे है, हाईवे पे दोनों कार मूव कर रही हैं इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में आपकी कार मूव कर रही है। ठीक है, अब एक ऑब्जर्वर आपने यहां पे बनाया, ए ऑब्जर्वर यहां पे है, ये मैंने कहा ए ऑब्जर्वर। ये जो पहला ड्राइवर है जो व्हाइट वाले कार में बैठा हुआ है, और जो दूसरा ऑब्जर्वर है बी ड्राइवर, ये बी कार में बैठा हुआ है। दो ड्राइवर हैं, दोनों कार को ड्राइव कर रहे हैं राइट डायरेक्शन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि ए ऑब्जर्वर बी ऑब्जर्वर, एक और ऑब्जर्वर ले लेते हैं, कि मैंने कहा कि एक और ऑब्जर्वर है जो रोड पे खड़ा है। ये मान लीजिए मैं हूं, मी, ये मैं खड़ा हूं। ठीक है,
ये मैं खड़ा हूं और मैं दोनों कार को देख रहा हूं। तो अगर मैं इस वाली कार को देखूंगा, ए वाली कार को, तो मैं कहूंगा ए कार आपकी 10 मीटर पर सेकंड से राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। मेरे रेस्पेक्ट में ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक, मैंने कहा जो बी कार है वो भी मेरे रेस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो फर्स्ट पार्ट मैंने कहा फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम मैंने क्या माना? मैंने खुद को एक रेफरेंस फ्रेम माना है। मैं चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है, मैं जो हाईवे पे खड़ा है इंसान, वो चीजों को देख रहा है। मैं यहां पे बैठ के कार को भी देख रहा हूं और मैं यहां पे बैठ के इस वाले कार को भी देख रहा हूं। तो मैंने क्या कहा कि जो ए कार है और जो बी कार है दोनों 10 मीटर पर सेकंड से राइट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। बहुत अच्छे। अब मेरे से पूछा गया अगर मैं इसको ऑब्जर्वर मान लूं, अगर ये ऑब्जर्वर है, ये एक ऑब्जर्वर है। ठीक, मान लीजिए आप इस कार में बैठे हुए हैं और आपका फ्रेंड दूसरी वाली कार में है। ठीक, दोनों चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, दोनों चल रहे हैं। मैं भी कार को ड्राइव कर रहा हूं और एक और जो आपका फ्रेंड है वो भी दूसरी कार को ड्राइव कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो दोनों जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो उनको क्या लग रहा है कि मेरे रेस्पेक्ट में ये तो इधर ही है। मैं अपने रेस्पेक्ट में मैं चीजों को एनालिसिस कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, मैं चीजों को देख रहा हूं जो कार को ड्राइव कर रहा है। ठीक है, तो मैं चीजों को देख रहा हूं और मैं बगल वाली कार को देख रहा हूं। तो ये वाली कार तो मेरे रेस्पेक्ट में हमेशा इसी पोजीशन पे है। आसपास की चीजों को भूल जाइए, मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं। ठीक है, मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं। तो मैं जब इसको देख रहा हूं तो मेरे को लग रहा है ये तो मेरे पास में ही है, हमेशा इसी पोजीशन पे है। हमेशा मेरे को ये इसी पोजीशन पे नजर आएगा, ये हमेशा मेरे को इसी पोजीशन पे नजर आ रहा है। इसका मतलब मेरे रेस्पेक्ट में जो बी कार है वो क्या है? रेस्ट पे है। मेरे रेस्पेक्ट में तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। मेरे रेस्पेक्ट में तो लग रहा है ये मेरे हमेशा साथ साथ में चल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरे रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज 0। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ बी, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ ए with respect to B with respect to A is 0। ठीक है, VBA का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ B with respect to A। हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो यहां पे ऑब्जर्वर कौन है? कौन चीजों को देख रहा है? A, जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग बातें कर रहे हैं। हम लोग ए के रेस्पेक्ट में बातें कर रहे हैं। तो यहां पे ए क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। तो मैंने कोई अभी तक मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं निकाला है, ये सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था और मैंने सिंपल एनालिसिस की। मैं ए कार में बैठा हुआ हूं और बी कार मेरे साथ साथ मूव कर रहा है। तो मैंने क्या कहा कि मेरे रेस्पेक्ट में ये वाली जो कार है वो हमेशा इसी पोजीशन पे, मेरे रेस्पेक्ट में तो ये चेंज ही नहीं हो रहा। अगर मेरे रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है तो मेरे को लगेगा कि बी कार मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है। लेकिन बी कार 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है किसके रेस्पेक्ट में? जो बंदा ग्राउंड पे खड़ा है। जो ग्राउंड पे खड़ा वो कहेगा कि बी तो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। लेकिन जो दूसरा ड्राइवर है, ए ड्राइवर से जब मैंने पूछा कि भैया बताओ बी की स्पीड क्या है, तो वो कहेगा मैं तो बी को देख रहा हूं, वो तो मेरे को रेस्ट पे नजर आ रहा है क्योंकि मेरे रेस्पेक्ट में तो उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। आ रहा समझ में? तो ये हो गया रेफरेंस फ्रेम, कि रेफरेंस फ्रेम को हम लोग चेंज कर रहे हैं तो चीजें कैसे चेंज हो जा रही हैं। अब इसी में सिंपल हम लोग चलते हैं सेकंड पार्ट पे, VAB। तो सिंपल VAB का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। हम लोग हमेशा लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं वो आपका हमेशा रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, तो आपने बी के रेस्पेक्ट में एनालिसिस की है तो आपने क्या कहा कि बी क्या आ गया? रेस्ट पोजीशन पे आ गया। ठीक है, आप लोग एनालिसिस किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? बी के रेस्पेक्ट में। अगर मैं बी के रेस्पेक्ट में एनालिसिस कर रहा हूं इसका मतलब बी क्या आ गया? आपका रेस्ट पोजीशन पे आ गया।
बी के रेस्पेक्ट में आप लोग ए को देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल क्या लिखूंगा मैथमेटिकली, वी ए बी मीन्स वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब क्या, वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी, ठीक, वी ए प्लस माइनस ऑफ वी बी। हमेशा देखिए एक सेंटेंस बोल रहा हूं, मैक्सिमम लोगों को पता है कि किसी से मैं पूछूं कि वी ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, सबको कहेगा सर वी ए माइनस वी बी होता है। लेकिन इसकी एनालिसिस हमें क्या बताती है कि मैं ए की एनालिसिस बी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। अगर बी को जीरो करना है, क्योंकि मैं जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करता हूं उसको क्या करता हूं, रेस्ट पोजीशन पे ले आता हूं। तो रेस्ट पे बी है, तो बी को अगर रेस्ट पे लेकर आना है, अगर बी को रेस्ट पे लेकर आना है तो इसमें माइनस करना पड़ेगा ना, तभी आएगा रेस्ट पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने माइनस वी भी किया है। तो देखिए याद करने का तरीका इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब अभी हम लोग 2 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे तो वहां पे भी रिलेटिव मोशन आता है। आपने रिवर बोट प्रॉब्लम किया होगा, उसके बाद आपने रेन मैन प्रॉब्लम किया होगा कि बारिश हो रही है, अगर मैं बाइक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूं तो पानी का डायरेक्शन क्या होगा, जो रेन है वो किस डायरेक्शन में फॉल करेगी। अगर मैं सिंपल खड़ा हूं तो रेन ऐसे फॉल कर रही है। मैं बाइक चला रहा हूं, जब भी आपने देखा हो, जब भी आप बाइक चलाते हैं तो आपको लगता है कि पानी आपके मुंह पर आ रहा है, सिंपल सा ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो पानी आपको क्या लगता है कि आपके मुंह पे आ रहा है, ठीक। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये सब हम लोग रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। तो यहां पे अगर मैं देखूं वीएबी का मतलब क्या हुआ, एनालिसिस ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करनी है, जिसके रेस्पेक्ट में एनालिसिस करनी है उसको उल्टा कर कर ए में ऐड कर दो, ठीक है। बेटा आप लोग चैट पे रिप्लाई कर सकते हैं, बेटा ऐसा ना लगे कि मैं अकेला पढ़ रहा हूं। बेटा आप लोग कम से कम चैट पे रिप्लाई कीजिए, इंटरेक्शन होगा तभी मजा आएगा पढ़ाई का। प्लीज बेटा आप लोग चैट पे रिप्लाई कीजिए, बेटा प्लीज चैट पे रिप्लाई कीजिए आप लोग। कम से कम यस और नो में तो जवाब दीजिए कि जो चीजें मैंने बताई अभी तक वो आपने सुनी या नहीं सुनी। हाँ बेटा देखिए चैट फैकल्टी करके एक आपको नजर आ रहा होगा, चैट फैकल्टी करके आपको नजर आ रहा है। आप लोग चैट फैकल्टी पे रिप्लाई कीजिए बेटा, चैट फैकल्टी करके एक आपको आईडी नजर आ रही होगी बेटा, चैट फैकल्टी पे रिप्लाई कीजिए। हाँ हाँ गुड गुड गुड, उत्कर्ष ने किया है, धैर्य ने किया है, सुजल, कालरा, निकिता, टीना, ओके। चलिए अब हुआ ना, अब मेरे को मजा आएगा बताने में। अभी आपको धीरे धीरे लगेगा कि हाँ कुछ नई चीज सीखी। आपको पर डे में ऐसा ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको लगेगा कि फर्स्ट टाइम सुना है, ये मेरी गारंटीड है, ठीक है। उत्कर्ष ने सभी चीजें समझ ली हैं सर, अच्छा लग रहा है। रमन बेटा मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों से इंटरेक्ट करके बहुत मजा आ रहा है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए चीजों को याद करने का तरीका, जिसके रेस्पेक्ट में आपको एनालिसिस करनी है, जिसके रेस्पेक्ट में आपको एनालिसिस करनी है उसको उल्टा कर कर ऐड कर दो, ठीक है। माइनस का मतलब क्या हुआ, सिंपल उल्टा कर कर ऐड कर दो। माइनस का मतलब रिवर्स कर देना, ठीक। तो मैं इसको कैसे याद करूंगा, जिसके रेस्पेक्ट में आपको एनालिसिस करनी है उसको उल्टा कर कर ए में ऐड कर दो, आपको वीएबी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए रागिनी थैंक यू सो मच बेटा। बेटा प्लीज आप लोग चैट फैकल्टी पे, रागिनी चैट फैकल्टी पे चैट कीजिए। मैं यहाँ पे चैट नहीं देख पाऊंगा, मेरे पास एक स्क्रीन है चैट फैकल्टी के नाम से, मैं उसको देख सकता हूं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि आप लोगों ने अपना नाम बताया कि कौन कौन मेरी क्लासेस को सुन रहे हैं, निकिता हैं, रमन हैं, दिलप्रीत हैं, सुजल है, धैर्य है, ठीक। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, देवदूत भी हैं। बेटा चैट फैकल्टी पे चैट कीजिए प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू प्लीज चैट ऑन चैट फैकल्टी। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों के नाम के हिसाब से ही, ठीक है। आप लोगों के जो नाम है उसके हिसाब से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि चीजें थोड़ी सी और क्लियर हों कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। अब
मैंने कहा कि मान लीजिए एक बस है, एक बस है, बस राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ 10 मीटर पर सेकेंड। बस आपकी राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसमें मान लीजिए निकिता बैठी हुई है, ये निकिता है, रमन है, रमन दौड़ रहे हैं इस डायरेक्शन में। मैंने कहा कि 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहे हैं, और ये दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू बस। बस के रेस्पेक्ट में रमन 2 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, ठीक है, बस में, चलती बस में दौड़ते जा रहे हैं, ठीक है। उत्कर्ष हैं, उत्कर्ष यहां पे खड़े हैं, ये इधर दौड़ रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड से। ये एनालिसिस है, ये सब चीजें मेरे को दी हुई हैं, ठीक। अब ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग धीरे से एक एक क्वेश्चन बाई पार्ट्स करते हैं, ठीक है। यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछेंगे, बहुत सिंपल होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया, फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू उत्कर्ष, ठीक है। उत्कर्ष से पूछा गया, मैंने पूछा उत्कर्ष बेटा अच्छा ये बताओ कि बस की वेलोसिटी कितनी है। तो उत्कर्ष तो खड़े होके दौड़ रहे हैं और बस को भी देख रहे हैं, दौड़ते दौड़ते बस को देख रहे हैं, ठीक है। तो दौड़ते दौड़ते वो जब बस को देख रहे हैं तो उत्कर्ष ने बताया सर इसकी वेलोसिटी तो आ रही है 10-5 मीटर पर सेकेंड। अरे मैंने पूछा ये कैसे बता दिया? उत्कर्ष ने ऑब्जर्वेशन करके बताया, ठीक है, कि 5 मीटर पर सेकेंड है। फिर मैंने सोचा इसको किया कैसे जाए, तो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू उत्कर्ष, ये क्वेश्चन था। तो वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू उत्कर्ष इज इक्वल टू VB माइनस VU। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। हाँ, मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही दिया है। वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी, तो मेरे को डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक। तो मैंने क्या किया, राइट डायरेक्शन को क्या माना, पॉजिटिव, और लेफ्ट डायरेक्शन को क्या माना, नेगेटिव। ये मेरा साइन कन्वेंशन है, ठीक। अब VB वेलोसिटी ऑफ बस, बस देखिए 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है राइट डायरेक्शन में, तो राइट डायरेक्शन क्या है प्लस, इसमें आपने लिखा 10, माइनस VU उत्कर्ष भाग रहे हैं राइट डायरेक्शन में विथ 5 मीटर पर सेकेंड, तो आपने 5 किया, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो उत्कर्ष को क्या लगेगा कि मेरे रेस्पेक्ट में बेटा बहुत अच्छे, श्रेया, उत्कर्ष, कंचन, निवेदिता, रागिनी, दिलप्रीत, सबने बहुत बिल्कुल सही, सबने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया। आई एम वेरी इंप्रेस्ड, ठीक है। जब बच्चे लोग इंटरेक्ट करते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तब मेरे को लगता है कि चलो अब नई चीज और बताई जाए, थोड़े टिपिकल क्वेश्चन और बताई जाए। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे करके एक लेवल बढ़ाएंगे, तब आपको लगेगा कि मैं तो टिपिकल क्वेश्चन से बेकार में डरता था, सर ने समझाया, अब तो मैं चुटकियों में कर सकता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। इसलिए मैंने पहले इजी क्वेश्चन लिया। अब सेकंड पार्ट मैंने पूछा, सेकंड पार्ट देखते हैं कितने लोग बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर बताते हैं और तुरंत बताते हैं। मैंने पूछा वेलोसिटी ऑफ रमन विथ रेस्पेक्ट टू बस, सॉरी बस के रेस्पेक्ट में तो दिया हुआ मैंने, वेलोसिटी ऑफ रमन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने लोग जल्दी से आंसर देते हैं। 12 धैर्य ने दिया है, 12 श्रेया ने भी दिया है, 12 कंचन 2, रमन 12, 2। अच्छा 12 और 2 में है, क्योंकि मैक्सिमम लोग 12 कह रहे हैं और कई लोग 2 भी कह रहे हैं,
चलिए अब हम लोग देखते हैं दोनों में से कोई एक ही आंसर सही होने वाला है, ठीक है। लेट्स चेक कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं कि किसमें से कौन सा आंसर सही है। देखिए वेलोसिटी ऑफ रमन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो सबसे पहले देखिए वेलोसिटी ऑफ रमन विथ रेस्पेक्ट टू बस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रमन माइनस वेलोसिटी ऑफ बस। एक सेकंड कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, मैक्सिमम लोगों को पता है। सेकंड कॉन्सेप्ट, ये जो राइट हैंड साइड में आपने लिखा है वेलोसिटी ऑफ रमन, वेलोसिटी ऑफ बस, ठीक है, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, एक के रेस्पेक्ट में होनी चाहिए, किसी एक के रेस्पेक्ट में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों के लिए सेम रेफरेंस होना चाहिए, सेम रेफरेंस। अब देखिए टेक्निकल वर्ड से आप घबराइएगा नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। वेलोसिटी ऑफ रमन मेरे को नहीं पता, वेलोसिटी ऑफ बस आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये बताइए वेलोसिटी ऑफ बस 10 मीटर पर सेकंड किसके रेस्पेक्ट में है? वेलोसिटी ऑफ बस 10 मीटर पर सेकंड किसके रेस्पेक्ट में है? जल्दी से बताइए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है कि उत्कर्ष के रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। धैर्य नहीं, बिल्कुल सही। नहीं बेटा, निकिता के रेस्पेक्ट में नहीं है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बस ये कितना दिया हुआ, 10 मीटर पर सेकंड राइट डायरेक्शन में, ठीक। तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड है किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो अब यहां से मैं जो आर की वैल्यू निकालूंगा वी आर, ये भी किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसलिए मैंने लिखा था दोनों सेम रेफरेंस में होते हैं। अगर ये वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दी हुई है तो यहां से अगर मैं वी आर निकालूंगा तो वो भी किसके रेस्पेक्ट में आएगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो देखिए वी आर बी, वेलोसिटी ऑफ रमन विथ रेस्पेक्ट टू बस, ये कितना दिया हुआ है? देखिए रमन बस के रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं? 2 मीटर पर सेकेंड। और किस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं? राइट डायरेक्शन में। इसमें मैंने +2 लिख दिया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वी आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 + 2 दैट मीन्स 12 मीटर पर सेकेंड। बेटा क्लियर है? बेटा सभी को क्लियर है? इफ इट इज क्लियर देन जस्ट राइट वाई फॉर यस। अगर बेटा सभी को क्लियर है, पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल वाई लिखिए, वाई फॉर यस। चलिए गुड 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 गुड, बहुत अच्छे रोशन, श्रेया, सूरज, प्लीज एक्सप्लेन अगेन, दिलप्रीत, शिवम, चलिए फिर से एक्सप्लेन कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है। वीआरबी, देखिए सूरज ध्यान से देखिए, वीआरबी का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ रमन विथ रेस्पेक्ट टू बस इज इक्वल टू वी आर माइनस बीबी। तो आपने वी आर इज इक्वल टू, यही तो निकालना है, वेलोसिटी ऑफ रमन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक। तो बस की स्पीड आपको दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है किसके रेस्पेक्ट में है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। इसलिए जो वी आर की वैल्यू आप निकालेंगे यहां से वो भी किसके रेस्पेक्ट में निकलेगी? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकलेगी। बस किस डायरेक्शन में जा रहा? राइट डायरेक्शन में, इसलिए राइट डायरेक्शन प्लस और बीच में माइनस साइन था। तो यहां से वीआरबी, रमन बस के रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड से आगे दौड़ रहे हैं? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो आपने कहा ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए यहां तक मेरे ख्याल से थोड़ा सा बच्चों को इंटरेस्ट आ रहा है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। बेटा क्लियर है? ये 1S0TBAB ये कौन है? अपना नाम लिख दीजिए। नाम लिखेंगे तो बेटा मेरे को समझने में भी आसानी होगी। आप इतना लंबा चौड़ा आपने लिखा हुआ है, नाम तो है नहीं, अजीबो गरीब, ठीक है। अब देखिए क्वांटिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम में कौन कौन सी चीजें डिपेंड करती हैं? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। क्वांटिटीज which doesn't depend on reference frame। ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी हैं जो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती?
और ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटी हैं जो कि रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। ठीक, पूरा जो कॉन्सेप्ट है बेटा, हाँ अजीत, ठीक है, देखिए पूरा जो कॉन्सेप्ट है इन्हीं दो पे बेस्ड है। अगर ये दो कॉन्सेप्ट अगर मेरे को समझ में आ जाए तो मैं रिलेटिव मोशन के क्वेश्चन आराम से कर सकता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट VAB इज इक्वल टू पढ़ लेते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा तो सिंपल ये जानते हैं VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, मेरा रिलेटिव मोशन खत्म। ठीक है, अगर मैं किसी से पूछूं, जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट यही कहते हैं सर रिलेटिव मोशन मतलब VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। उनको ये सब चीजें पता ही नहीं होती हैं, इसलिए वो क्वेश्चन में अटक जाते हैं। ठीक, तो मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आपको लेके चल रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आता। अगर जिसको आता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिलेंगी, और जिसको नहीं आता है उसको कुछ मिलेगा, उसको आज जाके घर पे लगेगा कुछ सीखा, मेरा 1 घंटे का टाइम वेस्ट नहीं हुआ। ठीक है, आपका पर डे यही होना चाहिए। अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर कोई नई चीज नहीं बताई जा रही है और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब वो आपका टाइम वेस्ट है। ये गारंटीड है कि अगर आप लोग यहाँ पे एनरोल करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगा किसी भी दिन। ठीक, चलिए, पहला रेफरेंस फ्रेम पे कौन कौन सी चीजें डिपेंड करती हैं। फर्स्ट, डिस्टेंस। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट। मैं हर एक के एग्जांपल लूंगा समझाने के लिए, टेंशन मत लीजिए। थर्ड, स्पीड। फोर्थ, वेलोसिटी। फिफ्थ, एक्सीलरेशन। सिक्स्थ, वर्क। ये सभी क्वांटिटी हैं जो कि आपकी क्या होती हैं, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल जो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिया था, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं फिर से उसी पार्ट पे आ रहा हूं, जरा सा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, मैंने कहा कि मान लीजिए ये दिलप्रीत हैं, मैं हर एक स्टूडेंट को इंक्लूड करूंगा, ठीक है, ताकि लगे कोई ये ना कहे कि सर मेरा नाम नहीं लिया। ठीक, और यहां पे एक कार है जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैंने मान लिया कि कार कौन ड्राइव कर रहा है, इधर कार ड्राइव कौन कर रहा है, किसका नाम ले लूं, शिवम। शिवम ड्राइव कर रहे हैं कार को। मैंने कहा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक और कार है, ठीक, और ये ड्राइव कर रहे हैं सूरज। ये भी चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। मेरी जो इनिशियल कंडीशन है, मैंने माना इन दोनों कार की बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, और ये जो ऑब्जर्वर है इस वाले कार से ये भी 100 मीटर है, या सिंपल ले लेते हैं 200 मीटर है। बेटा देखिए, एग्जाम्पल को हम लोग समझ पाएंगे तो कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। फिजिक्स का मतलब है कि मेरे को डेली लाइफ में जो चीजें हो रही हैं उसको ऑब्जर्व करना। अगर डेली लाइफ की चीजों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको समझ में आने लगेंगे। ठीक है, कोई फॉर्मूले पे बेस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं होता फिजिक्स में, ध्यान रखिएगा। अब मैंने कहा कि दिलप्रीत हैं, वो रोड पे खड़ी हैं, ठीक, तो मैंने दिलप्रीत से पूछा कि शिवम तो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, तो मैंने पूछा बेटा ये बताइए शिवम की कार आपकी कितनी डिस्टेंस पे है। दिलप्रीत ने कहा सर ये तो 200 मीटर की डिस्टेंस पे है। ठीक है, मैंने पूछा दिलप्रीत से, दिलप्रीत ये बताइए सूरज की कार कितनी डिस्टेंस पे है। इन्होंने कहा 200 प्लस 100, सर 300 मीटर की डिस्टेंस पे है। लेकिन जब मैंने शिवम से पूछा बेटा ये बताइए कि सूरज की कार कितनी डिस्टेंस पे है, तो शिवम ने कहा सर ये तो 100 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो देखिए पहले केस में मैंने क्या लिया, दिलप्रीत को ऑब्जर्वर बना दिया, दिलप्रीत ऑब्जर्व कर रही थी, तो दिलप्रीत के रेस्पेक्ट में सूरज 300 मीटर की डिस्टेंस पे है, लेकिन शिवम के रेस्पेक्ट में ये आपके 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि अगर मैं रेफरेंस फ्रेम को चेंज करूं, रेफरेंस फ्रेम का मतलब क्या, वो ऑब्जर्वर जो चीजों को देख रहा है, अगर मैं ऑब्जर्वर को चेंज कर दूं तो डिस्टेंस अलग अलग मिलेगी। दोनों लोग बता रहे हैं, ठीक है, दिलप्रीत कह रही है कि मेरा 300 मीटर है और शिवम कह रहे हैं कि सर ये 100 मीटर पे है। तो जो पहला पॉइंट लिखा आया था कि डिस्टेंस क्या है, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट,
डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो अगर इस केस में बात करें कि दिलप्रीत के रेस्पेक्ट में शिवम की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, +200। दिलप्रीत के रेस्पेक्ट में सूरज की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, +300। लेकिन शिवम के रेस्पेक्ट में सूरज की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, +100। बेटा यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो बेटा जस्ट राइट वाई फॉर यस। ठीक है, गुड गुड, बहुत अच्छे बेटा। अब मैंने कहा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर डिस्टेंस ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है तो स्पीड भी तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा। मैंने कहा कि शिवम की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू दिलप्रीत कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैंने कहा कि शिवम की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू सूरज, अगर सूरज शिवम को देखें तो उनको लगेगा कि हम दोनों की डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रही है, दोनों आगे जा रहे हैं लेकिन दोनों के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो रही है। तो सूरज को लगेगा कि शिवम तो मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि दोनों पार्टी को लगेगा कि दोनों एक साथ ही हैं, डिस्टेंस कभी चेंज नहीं हो रहा बेटा, ऑब्जर्वर चेंज हो गया। ठीक, तो शिवम से अगर पूछा जाए कि सूरज की स्पीड कितनी है तो शिवम क्या कहेंगे, सर सूरज की स्पीड तो 0 है। सूरज से पूछा जाए कि शिवम की स्पीड कितनी है तो ये भी कहेंगे सर 0 है, क्योंकि इन दोनों की जो डिस्टेंस थी, ठीक है, वो कभी चेंज नहीं हो रहा था टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जर्वर को चेंज कर रहा हूं तो स्पीड भी चेंज हो जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट अगर आपका ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है तो वेलोसिटी भी डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अगर वेलोसिटी भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी डिपेंड करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां तक मेरे को चीजें क्लियर आ गई कि मैंने जो 3-4 पॉइंट्स लिखे थे, ये जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स थे, डिस्टेंस रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट ये भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, अगर डिस्टेंस रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा तो स्पीड भी डिपेंड करेगी, अगर डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है तो वेलोसिटी भी डिपेंड करेगी, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में तो एक्सीलरेशन भी चेंज होगा, सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ कि ये जो 5 पैरामीटर्स हैं, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, ये सब के सब क्या है, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है तो लिखिए जस्ट वाई फॉर यस। बेटा प्लीज थोड़ा जल्दी रिप्लाई करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, गुड। अब आता है वर्क। ठीक, वर्क आपका कैसे डिपेंड करेगा, ये जो क्वेश्चन था वर्क का जो मैं भी आपसे पूछ रहा हूं कि हाउ वर्क डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, ये थियरी का क्वेश्चन आपके यूपीएससी में बहुत साल पहले पूछा था। ठीक है, अगर मैं वर्क को लिखूं तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है तो वर्क डन भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो वर्क डन भी क्या हो गया, रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर गया। हाँ धैर्य, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल सही लिखा आपने। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है बेटा कि अगर आपसे अगर आज के दिन कोई पूछता है ये बताओ कि कौन कौन सी चीजें हैं जो रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेंगे, मेरे ख्याल से 100% स्टूडेंट इस चीज का जवाब दे पाएंगे, सर ये सब पैरामीटर्स हैं जो कि रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेंगे। चलिए, बहुत अच्छे। हाँ रागिनी बहुत सही कह रही हैं आप, डिस्प्लेसमेंट के कारण, बिल्कुल सही। ये वाला जो पार्ट है आपका, क्वांटिटीज विच डजंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, यही एक आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसी चीज के कारण हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझे कि कौन कौन से क्वांटिटीज हैं जो कि रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती हैं, चाहे कोई सा भी ऑब्जर्वर हो, इन पैरामीटर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो पहला कौन सा है पॉइंट आपका, पहला पॉइंट है फोर्स। पहला है फोर्स। देखिए इसके लिए एग्जांपल ले रहा हूं कि कैसे पता चले कि फोर्स आपका रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। मैंने कहा कि एक बॉडी है, इस बॉडी पे आपने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया। ठीक है, यहां पे
धैर्य खड़े हैं ग्राउंड पे, रेस्ट पोजीशन पे है धैर्य। जब मैंने धैर्य से पूछा कि ये फोर्स की वैल्यू क्या है, तो धैर्य ने सिंपल देखा, बोला सर फोर्स की वैल्यू तो 100 न्यूटन है। मैंने बोला बहुत अच्छे, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने कहा कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट में रमन खड़े हैं और लिफ्ट ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। मैंने रमन से पूछा बेटा ये बताओ कि यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। रमन ने सिंपल देखा, बोला सर ये तो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। कोई सा भी ऑब्जर्वर हो, दोनों ऑब्जर्वर के लिए फोर्स की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है बेटा, मिस कॉन्सेप्ट में ये मत होइएगा, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे कई लोग बात करते हैं कि सर यहाँ पे तो स्यूडो फोर्स आएगा। मैं बताऊंगा जब एनएलएम पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स कैसे आता है। यहाँ पे तो सिंपल हम लोग बात करें, वो आता है, लेकिन ये फोर्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है दोनों ऑब्जर्वर के लिए। एक नया फोर्स इंट्रोड्यूस हो भले ही जाता है। अभी हम लोग भूल जाते हैं कि हमें स्यूडो के नाम की कोई चीज पता है। अभी हम लोग सिंपल बात करते हैं कि रमन ने देखा बोला सर 100 न्यूटन, धैर्य ने देखा बोला सर 100 न्यूटन। दोनों ऑब्जर्वर तो अलग अलग थे, इसका मतलब फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। ठीक है बेटा, क्लियर है। रागिनी ने तो लिख दिया यस सर, धैर्य ने भी लिख दिया यस सर। सिर्फ 2 लोगों को क्लियर है, इसके अलावा किसी को नहीं। नहीं, और लोगों को भी क्लियर है, रमन, टीना, सूरज, दिलप्रीत, रोशन, शिवम। चलिए बहुत अच्छे बेटा, आप लोग कम से कम अटेंटिव हैं। पल्लवी, कंचन, सूरज, गुड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पैरामीटर जो आपका रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड पैरामीटर कौन सा है? टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर हमें कहीं पे टाइम निकालना रहता है तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि क्यों हम लोग रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं। आज समझ में आएगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। मान लीजिए एक ट्रेन है, ट्रेन यहां पे चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से। यहां पे मैं खड़ा हूं, यहां पे मान लीजिए कंचन है, और ये शिवम है। ये ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है, शिवम बैठे हुए हैं। और उसके बाद श्रेया। हाँ श्रेया, आपका जो डाउट है मैं बताऊंगा। मास इनटू एक्सेलरेशन, वेट कीजिए, उस टॉपिक पे आऊंगा। यहां पे मान लीजिए श्रेया है, श्रेया यहां पे भाग रही हैं 5 मीटर पर सेकंड से। ट्रेन में आप दौड़ सकते हैं ना, सिंपल है, ट्रेन काफी बड़ी होती है, दौड़ के जा सकते हैं। ठीक, तो श्रेया ने यहां से भागना स्टार्ट किया और वो मेरी तरफ आ रही है भागते हुए। ठीक है, तो मैंने शिवम से कहा श्रेया यहां से यहां तक भाग कर आई, तो शिवम ने कहा कि सर इनको यहां से यहां तक पहुंचने में, मैंने कहा कि 2 मिनट लगे। ये किसने बताया? शिवम ने बताया। ठीक है, मैंने शिवम से पूछा कि श्रेया को आपसे और मेरी तरफ भागकर आने में कितना टाइम लगा। सिंपल, ये जब जैसे ही श्रेया ने भागना स्टार्ट किया, इन्होंने घड़ी में देखना स्टार्ट कर दिया, और ये जब मेरी तक पहुंच गए इन्होंने स्टॉप वॉच को ऑफ कर दिया। ठीक है, मतलब कि बंद कर दिया। तो इन्होंने कहा सर 2 मिनट का टाइम लगा इनको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का। मैंने बोला बहुत अच्छे। अब कंचन भी खड़ी थी यहाँ पे, तो कंचन से मैंने पूछा बेटा ये बताइए श्रेया को शिवम से लेके मेरे तक आने में कितना टाइम लगा। तो कंचन ने भी वही किया था, इन्होंने घड़ी पहनी हुई थी और सिंपल कहा सर शिवम से यहां तक आने में श्रेया को कितना टाइम लगा? 2 मिनट। ऐसा थोड़ी ना कि कंचन कहेंगे सर ये 4 मिनट में पहुंची, शिवम कहेंगे सर ये 5 मिनट में पहुंचे। दोनों के लिए सेम, श्रेया यहां से यहां तक आई तो दोनों के लिए टाइम तो एक ही हुआ ना। दोनों एक साथ बताएंगे सर 2 मिनट में ये दोनों के दोनों यहाँ पे पहुंच गए। ठीक, तो ऑब्जर्वर, शिवम एक ऑब्जर्वर थे, कंचन एक ऑब्जर्वर थी। मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अलग अलग किया, लेकिन टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। बेटा ये क्लियर है? फिर हम लोग थर्ड पॉइंट पे चलें। श्रेया आपके डाउट पे मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए। ठीक है, बस 3 लोगों को क्लियर हुआ है,
उत्कर्ष, दिलप्रीत, रमन, अजीत, चलिए ओके। अब थर्ड पॉइंट क्या है आपका? अगर हम लोग थर्ड पॉइंट पे आए, थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। दो पार्टिकल्स की जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने कहा कि एक कार है, एक दूसरी कार है, ये इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ये कार इधर जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, चीजों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। मैंने कहा कि इस इंस्टेंट पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 10 मीटर। तो जो ये वाला ऑब्जर्वर है ए और ये जो बी ऑब्जर्वर है बी, तो ए ने क्या कहा कि जो बी है वो मेरे रेस्पेक्ट में 10 मीटर की डिस्टेंस पे है। ये तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई। अब मैंने कहा कि एक और ऑब्जर्वर है सी, वो ग्राउंड पे खड़ा है, ठीक है, ये आपका रेस्ट पोजीशन पे है। तो जब मैंने सी वाले से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो सिंपल, तो उन्होंने क्या कहा कि सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो 10 मीटर है। मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर रहा हूँ। पहले ए से पूछा तो उसने कहा सर दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है। जब मैंने सी से पूछा तो सी वाले ने भी कहा कि सर कि दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर है। तो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर रहा हूं, तो दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस आपकी चेंज नहीं हो रही है। बेटा क्लियर है यहां तक सबको? तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। फोर्स आपका इंडिपेंडेंट होता है, टाइम इंडिपेंडेंट होता है, और डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स इंडिपेंडेंट ऑफ द रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन श्रेया ने बहुत अच्छा पूछा कि सर, श्रेया का क्वेश्चन है बता रहा हूं, श्रेया ने पूछा कि सर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि फोर्स आपका इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, ठीक। तो बताइए, मेरे ख्याल से कई सर दोनों, बेटा सूरज मैं उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, इससे मैंने जब स्टार्ट किया था तो उस इंस्टेंट के बारे में पूछा था कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस आपकी सेम होती है। एक्सीलरेशन कुछ भी हो, मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूं बेटा, मैं पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा हूं। धैर्य, डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ मैं इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं। उस समय उस पर्टिकुलर समय पे क्या हुआ, मैं उस समय की बात कर रहा था। अलग अलग टाइम पे तो अलग होगा, लेकिन मैं उस समय की बात कर रहा हूं। चलिए, अब यहां पे जो क्वेश्चन था कि मैंने कहा कि एक्सेलरेशन तो आपका क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन फोर्स आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सिंपल सा क्या कॉन्सेप्ट था? अगर मैं सिंपल, एक बॉडी है, मैंने कहा कि ये 2 kg का ब्लॉक है, इस पे मैंने फोर्स दिया 100 न्यूटन का, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 100/2, दैट मीन्स 50 मीटर पर सेकेंड। फोर्स तो 100 ही रहेगा ना, एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कोई सा भी ऑब्जर्वर होगा, ये ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और एक ऑब्जर्वर भाग रहा है 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो इससे पूछा जाए कि फोर्स कितना, ये भी कहेगा 100, और इससे पूछा जाए कि फोर्स कितना, ये भी कहेगा 100। आ रहा समझ में? ठीक है, लेकिन दोनों के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। थोड़ा सा और वेट करेंगे तो हम लोग जो आगे वाला जो पार्ट है, ये सब चीजें और क्लियर होंगी जब हम लोग मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे 2 डायमेंशन मोशन में, और हम लोग यूज करेंगे मोशन द ग्रेविटी में, ठीक है। ये अभी मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया है, अभी मैं कम से कम 3 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, और 3 न्यूमेरिकल में आपको कम से कम 90% कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है रिलेटिव मोशन ये होता है, क्योंकि उसमें मैं सभी चीजें निकलवाने वाला हूं, ठीक है। तो बेटा आज के दिन हम लोग यहीं पे इसको बाइंड अप करेंगे, इसके आगे जो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ 3 क्वेश्चन मैं कह रहा हूं, सिर्फ 3 क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं।
3 क्वेश्चन में 99% मेरी गारंटी है कि आपको रिलेटिव मोशन समझ में आ जाएगा, और क्यों और कैसे ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में क्यों किया और कैसे किया। चलिए अब ये आपका क्वेरी टाइम है। अगर आपके पास कुछ क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बेटा क्वेरी टाइम है, जितनी चीजें आप लोग पूछना चाहे आराम से पूछिए। बेटा पूछिए, क्वेरी टाइम है। धैर्य। देखिए जो आपने पर्टिकुलर जो क्वेश्चन पूछा है कि हाँ बाज है और चूहा है, ठीक है, तो वो सब चीजें हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। अभी क्या है, जो पर्टिकुलर टॉपिक आपने पढ़ा उससे रिलेटेड अभी मैंने क्या कहा कि जो आपका बाज और चूहे की बात कर रहे हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन का वेट कीजिए। जो मेरी कल क्लास होगी मैं तीनों क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। उसके बाद यही क्वेश्चन आप कहेंगे सर ये तो मैंने सॉल्व कर लिया, आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कम से कम मेरे को बताने का मौका तो दीजिए। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, कि कौन कौन सी चीजें डिपेंड करते हैं, कौन कौन से इंडिपेंडेंट होते हैं। अभी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करवाया है। सभी बेटा सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। आप लोग कह रहे रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम, रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम तो बहुत आगे आएगा जब हम लोग रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको A to Z सभी कॉन्सेप्ट और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करवाऊंगा। लेकिन अभी मेरा कहना है जो आपने आज पढ़ा उस पे क्या क्या दिक्कतें आपको आई या क्या क्या पॉइंट्स हैं जो समझ में नहीं आए वो पूछिए। आप लोग आगे का पूछ रहे हैं। अब मैं सिंपल कहूं कि मैंने तो यहाँ पे ये पढ़ाया है और आप मेरे से कहें कि सर फ्लैग फ्लैटरिंग प्रॉब्लम करा दीजिए, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल करवा दीजिए, वो तो बेटा बहुत आगे आएगा ना। अगर मैं आपसे कहूँ यूपीएससी में एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कहूँ कि चलो फाइनल ईयर का पेपर दे दो, दे दोगे क्या? अभी कम से कम 3 साल पढ़ने तो दीजिए, मेरे को 3 स्टेप बताने तो दीजिए। ठीक है, इससे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो आज पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेरी का मतलब यही होता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड ये जनरल क्वेरी है आपके पास कुछ, वो सिर्फ 2 चीजें। मैं यहाँ पे रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम करवाऊंगा तो कई लोग कहेंगे सर अभी तो मेरे को बेसिक ही क्लियर नहीं हुआ तो रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम करवाने लगे आप। बेटा एक्सेलरेशन रेफरेंस पे इन पे डिपेंड करेगा बेटा। हाँ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो मैं हाँ श्रेया बिल्कुल सही, आप अपनी तरीके से कैसे भी डायरेक्शन ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप राइट को पॉजिटिव मान लिए, हो सकता है कि दूसरा फ्रेंड आपका राइट को नेगेटिव मान ले, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपकी मर्जी है, आप जिसको भी राइट पॉजिटिव माने किसको भी नेगेटिव माने, ये आपके ऑब्जर्वर, ये आप पे डिपेंड करता है। साइन कन्वेंशन तो मेरी कन्वेंशन के हिसाब से ना, कन्वेंशन कन्वेंशन बड़ी है मेरी सहूलियत के हिसाब से, तो आपको जो सहूलियत लगे वो कीजिए, आप इसके लिए बिल्कुल फ्री हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से ही कीजिएगा, या अगर कई लोगों को लग रहा है तो चलिए मैं बता ही देता हूँ, एक क्वेश्चन करवा ही देता हूँ, मेरा टाइम जाएगा उसमें 15-20 मिनट का। एक क्वेश्चन है रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से कीजिएगा, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। और रिवर्ट बोर्ड प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम, 3 दिन के अंदर हम लोग सभी टॉपिक को करेंगे। आप लोग इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अभी तो स्टार्टिंग की है। ठीक है, मैंने कहा कि एक कार है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और कार की एक्सीलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने कहा ये डिस्टेंस 100 मीटर है। यहां पे एक और आदमी खड़ा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड टाइम व्हेन कार ओवरटेक्स मैन। कितने टाइम के बाद ये जो कार है इस मैन को ओवरटेक करेगी? बेटा रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट से कीजिएगा। अगर इसी क्वेश्चन को आप लीनियर मोशन से करेंगे तो मैक्सिमम आप, मैं कह रहा हूं गारंटीड 5 से 7 मिनट आपके जाएंगे।
रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो मैक्स टू मैक्स 50 सेकेंड्स आपको ये प्रैक्टिस करनी है रिलेटिव मोशन से। धैर्य, सक्सेसिव इंटरवल, आप तो क्वेश्चन ही पूरा चेंज कर दे रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन कम से कम नोट कर लीजिए, कल मैं सभी लोगों से पूछूंगा इसको कैसे किया। कल हम लोग इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हाँ, जो आपकी कल का मतलब हमेशा यह ध्यान रखिएगा, सभी फैकल्टी कहती हैं कल, ठीक है, तो मेरी भी आदत वही है कल। कल का मतलब जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। हो सकता है मैं फ्राइडे को भी कहूँ कि कल, अब आपकी सैटरडे को क्लास ना हो, मतलब कि जिस दिन मेरी क्लास होगी वो मेरे लिए कल है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उसमें बेटा मैन की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। मैन की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। मैन की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। और धैर्य जो आपने पूछा है ना, सक्सेसिव इंटरवल, अगर मैं किसी देखिए धैर्य का क्वेश्चन क्या है, कोई ये ना कहे सर ने तो मेरी क्वेरी का जवाब ही नहीं दिया, ठीक है। धैर्य देखिए क्या पूछ रहे हैं, धैर्य पूछ रहे हैं कि एक पार्टिकल है, इसको मैं ड्रॉप करूं, मैंने इसको ड्रॉप किया तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे मैंने कहा कि 1 सेकंड में पार्टिकल यहां पहुंच गया, अगले 1 सेकंड में पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो ये सेकंड में पार्टिकल यहां पे है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, और 1 सेकंड पे पार्टिकल यहां पे है। तो मैंने बोला कि इस हाइट का रेशियो बताइए h1 h2, ठीक है। मैं पहले बता देता हूं h1 h2 का रेशियो क्या होता है, h1 h2 h3 ये होता है 1:3:5:7। ये आपको इसी को कहते हैं गैलीलियो लॉ, ठीक है। ये बताऊंगा जब स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल सही सूरज, बहुत अच्छे। अच्छा रोशन ने आंसर भी निकाल दिया है, आंसर तो हम लोग कल चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए मेन तो ये था, मेन मुद्दे पे वापस आते हैं। मेन मुद्दा ये था कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है। मेन मुद्दे पे आते हैं, क्लास कैसी लगी, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा हुआ, और आप लोगों को चीजें समझ में आई कि नहीं आई। देवदत्त, देवदत्त प्लीज आप उस पर रिप्लाई कीजिए। देवदत्त आप चैट फैकल्टी पे रिप्लाई कीजिए प्लीज, आप सभी लोग चैट फैकल्टी पे रिप्लाई कीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी हम लोग लेक्चर्स लेंगे। आपका अगर क्रैश कोर्स शेड्यूल होता है, आप लोग अगर लेते हैं एडमिशन, तो हम लोग 30 चैप्टर्स हैं, उसको क्रैश कोर्स का मतलब होता है 30 चैप्टर अच्छे ढंग से रिकॉल किए जाएं और कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाया जाए, ठीक है। तो एक तो मैंने एक जनरल टॉपिक लिया था, तो हमारी अगर क्रैश कोर्स आपकी स्टार्ट होगी तो मैं इनिशियल चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। इनिशियल चैप्टर कौन सा है फिजिक्स में, मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, मोशन कौन सा है, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन। उसके बाद स्ट्रेट लाइन मोशन, उसके बाद स्ट्रेट लाइन मोशन में ये कॉन्सेप्ट आता है रिलेटिव मोशन का। फिर 2 डायमेंशन मोशन, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर एंड रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। बेटा आंसर तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा प्रीवियस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम के लिए रखिए, अगर हिंट देना चाहूं तो हिंट भले दे सकता हूं आप लोगों को। वेलोसिटी ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकालिए, वेलोसिटी एक्सीलरेशन ऑफ कार विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकालिए, ठीक है। और उसके बाद s कितना दिया हुआ है 100, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, t की वैल्यू आ जाएगी। इतना हिंट दिया मैंने आपको। बेटा क्रैश कोर्स के लिए जो सफलता है, आप लोगों के पास से कुछ तो लिंक आया होगा जहां से आपने आज की क्लास अटेंड की है, ठीक है। तो वहां पे सफलता.com एक आपकी साइट है, ठीक है। उस साइट पे आप लोग ओपन कीजिए गूगल पे, तो वहां पे आपकी सभी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि अगर आज के दिन आप लोग एनरोल होते हैं, ठीक, तो आपका जो प्राइस है क्रैश कोर्स का, ठीक, क्रैश कोर्स का जो प्राइस है 4,999, 5,000 है। अगर सिंपल से अगर आप देखा जाए ना कि 5,000 में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं 1 महीने के अंदर, ठीक। और आजकल तो एक सिंगल सब्जेक्ट पढ़ने में 10,000 रुपए लग जाते हैं 1 महीने में,
ठीक है, ये फैक्ट है, अगर आप तो जानते हो या ना जानते हो। तो अगर ये आपका 5,000 है लमसम पूरे क्रैश कोर्स का, लेकिन अगर आप आज और कल के दिन में एनरोल करवाते हैं, तो आज और कल के दिन में अगर एनरोल करवाते हैं तो सफलता वाले आपको 1500 का डिस्काउंट दे रहे हैं, 1500 का। तो ये आपका जो प्राइस हो जाएगा 3499। ठीक है, आज और कल में अगर आप लोग करवाते हैं तो। और एक तरीके से देखिए तो ये फ्री है, एक महीने में 3,500 रुपए और 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और पूरा रिवीजन हो रहा है। अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूं तो 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री, 30 मैथ्स, 90 चैप्टर्स इन 30 डेज विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, हर एक लेक्चर के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए, 3,000 को 90 से डिवाइड करके देख लीजिए, 100 रुपए भी नहीं आएगा। ठीक है, और 2 दिन के बाद यही प्राइस आपका हो जाएगा 3,999। 2 दिन के बाद 18, 19, 20 जुलाई अगर उस समय एनरोल करेंगे तो ये हो जाएगा 3,999। और उसके बाद अगर आप लोग करते हैं 21, 22, 23 जुलाई को एनरोल करते हैं तो ये प्राइस हो जाएगी 4,499। और उसके बाद अगर आप लोग एनरोल करेंगे तो वही जो आज जो प्राइस है आपकी 4,999 जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, वही प्राइस रहेगी 5,000। ठीक है, तो ये आपका डिसीजन है, मैं ये किसी को मैं फोर्स नहीं कर रहा, ये आपका डिसीजन है। और ये भी मैंने बता दिया, अगर इस साल यूपीएससी नहीं निकला, अगर आपका नेक्स्ट ईयर से आईटी से ज्वाइन होने वाला है, अगर आईटी से ज्वाइन हो तो आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया कितने बच्चे देने वाले हैं। यूपी में कम से कम लाखों स्टूडेंट दे देते हैं। ठीक है, और आईटी में वैसे ही 14 लाख दे रहे हैं, तो मिला के देख लीजिए 15-16 लाख में फिर आपको यूपीएससी का होगा। बेटा क्रैश कोर्स आपका 1 मंथ का रहेगा। ठीक है, 1 मंथ में आपका क्रैश कोर्स पूरा कंप्लीट होगा और हर एक टॉपिक, ये तो मैं एक जनरल टॉपिक लिया था और इसमें कई सारी चीजें होंगी। हाँ, और आपका ये भी बता दूं कि जो क्रैश कोर्स में 2 चीजें हम लोगों ने रखी हैं कि पर डे आपके 3 लेक्चर्स होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों लेक्चर्स आपके, और उसकी वीडियो लेक्चर्स भी आपको सफलता.com पे रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। जो आज के दिन मैंने पढ़ाया, अगर किसी को लग रहा है कि सर ये वाला टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ना है, तो आप उस रिकॉर्डेड लेक्चर को देख सकते हैं। लेकिन रिकॉर्डेड लेक्चर कब देख पाएंगे? जब आप इसमें एनरोल्ड हो जाएंगे, ऐसे आप लोगों के पास एक्सेस नहीं होगा। तो पर डे आपके 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और उसके बाद आपके डाउट सेशन भी पर वीक है। पर वीक आपका डाउट सेशन कि एक हफ्ते में आपने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं, आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की है, और उससे रिलेटेड अगर आपके पास डाउट है तो उसके लिए डाउट सेशन भी रखा गया है, तीनों सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। वीकली डाउट सेशन होगा और वीकली आपके टेस्ट भी होंगे, ताकि आप लोग, बेटा वी और यू अलग अलग है, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है। ये तो यू 0 है, ये आपका 4 मीटर पर सेकेंड है। अब देखिए, एक सूरज ने पूछा है कि क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट है। जब आप लोग जैसे ही एनरोल होंगे उसके नेक्स्ट डे से आपका स्टार्ट हो जाएगा क्रैश कोर्स। ठीक है, ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों का क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक, एक क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है। ठीक, तो उसके लिए आप लोग अगर एनरोल्ड हो जाएंगे तो स्टार्टिंग लेक्चर्स के आपको वीडियो रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। ठीक है, और आप लोग पैरेलली ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपका है, जितनी जल्दी ज्वाइन करेंगे तभी आपको बेटा फायदा होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्रैश कोर्स में देखिए क्या क्या है। क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा कि क्रैश कोर्स में क्या क्या चीजें हैं। देखिए क्रैश कोर्स में क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। क्रैश कोर्स में क्या क्या है, एक तो आपका वीकली मतलब कि पर डे आपको 3 सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। उसके पर वीक आपका डाउट सेशन होगा, जो कि क्रैश कोर्स में पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं नहीं मिलता, मैं इसको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, और उसको पर डे आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे कि जो भी हमने आज टॉपिक किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये पर डे की बता रहा हूं। और उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे पर डे के। ठीक है, और वीकली आपका टेस्ट होगा कि एक वीक ने आपने कितना परफॉर्म किया है, तो उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या है, तो आपको ये पता चले कि आप लोग कहां पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, ये 2 चीजें हैं। रोशन, जो हम लोगों का पुराना क्रैश कोर्स है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। रोशन, पुराने क्रैश कोर्स को चलते हुए 10 दिन हो चुके हैं। आप लोग जो न्यू स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए नया क्रैश कोर्स होगा। ठीक है, इन लोगों का सेशन तो 20 अगस्त तक खत्म हो रहा है। ठीक, तो आप लोग जो न्यू स्टूडेंट होंगे उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म है और उसमें बच्चे आएंगे एडमिशन के लिए। ठीक है, एक क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है
और उसमें अप्रोक्सीमेटली 250 प्लस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 250 प्लस, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 250 प्लस हैं। बेटा आप लोग जितनी जल्दी एनरोल करेंगे, आज और कल में करते हैं, तो कल या परसों से आप लोगों की क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगी, कल या परसों से आप लोगों के क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए बॉदर मत कीजिए, वो सब चीजें आपको सफलता वाले पे आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे कम्युनिकेट कीजिएगा, कल या परसों से आप लोगों की क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है बेटा, जरा से भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ही बताएंगे। कल हमारे जो सर हैं केमिस्ट्री वाले सर, वो आप लोगों को डील करेंगे, ठीक है, और आप लोग भी चीजों को समझिए कि हाँ केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी और हर एक सब्जेक्ट में मिलेगा। हमारे मैथ्स वाले सर भी आएंगे, ही इज फ्रॉम IIT धनबाद, ठीक है, जो अगर जो फैकल्टी हैं जो जिनका बैकग्राउंड अच्छा है एजुकेशन का, वो आपको सही गाइडलाइन दे सकती हैं, ठीक है। मामा चाचा इन सब की बातों पे मत जाइएगा, ठीक है, कि किसने क्या कहा कि क्रैश कोर्स से कुछ फायदा नहीं हो रहा। सिंपल सा आपके पास अभी तो डेट है सितंबर की, खुदा ना खास्ता अगर ये आगे भी एक्सटेंड हुआ तो आपको बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से बेटा IIT कोलैबोरेट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हैव ए नाइस डे। कल हम लोग बेटा मिलते हैं फिर वापस केमिस्ट्री वाले सर के साथ और हम लोग इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके, बाय बाय।